Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 66 of our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions in the MCQ format from your current affairs which are extremely important for all your competitive exams. So today's first question is, what is the primary focus of the Action Plan 2025 approved by the NMCG for the River Cities Alliance? नदी शहर गठबंधन के लिए NMCG द्वारा अनुमोदित कार्य योजना 2025 का प्राथमिक फोकस क्या है? We have the NMCG, which is your National Mission for Clean Ganga, National Mission for Clean Ganga, and under this national mission, we have a River Cities Alliance. The key focus of Action Plan 2025 would be to integrate river sensitive urban planning into city development. Basically, जो भी cities on the banks of rivers हैं, उनकी जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे अंडर दिस एक्शन प्लान, तो उसकी डेवलपमेंट को हम इंटीग्रेट एंड अलाइन करेंगे विद रिवर सेंसिटिव प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द ऑथर्स ऑफ द बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन? रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन हैं? Recently this book has been launched and the authors of this book are Devendra Kumar Sharma and Arun Singhal. I hope we all know Ramanujan was one of the greatest mathematicians of all time. Question number 3, where was the 6th joint group of customs meeting held between India and Bhutan recently? हाल ही में भारत और भूटान के बीच छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई? इंडिया एंड भूटान के बीच joint group of customs meeting. The right answer is Thimphu. Thimphu is the capital of Bhutan. और ये जो meeting थी, this was to talk about cross border trade. Cross border trade, customs, etc. transportation कैसे हम ease कर सकते हैं, उस सब के बारे में ये meeting थी. Question number 4, which department will release a commemorative stamp to honor the centenary of tabla legend पंडित चतुरलाल? कौन सा विभाग तबला वादक पंडित चतुरलाल की शताब्दी के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी करेगा? The commemorative stamp, and obviously it's stamp, so the department will be the Department of Posts, and this department comes under which ministry? It comes under the Ministry of Communication. Ministry of Communication के Department of Posts द्वारा ये commemorative stamp रिलीज किया जाएगा. Question number 5, who secured a historic 4th term for Canada's Liberal Party in the federal election? संघीय चुनाव में कनाडा की लिबरल पार्टी के लिए ऐतिहासिक चौथा कार्यकाल किसने सुरक्षित किया? Recently the Canadian elections concluded after Justin Trudeau had resigned और लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी विजेता घोषित हुए हैं. And this has been shocking to a number of people because ये expect किया जा रहा था कि after Justin Trudeau's resignation most probably conservative party जीत जाएगी, लेकिन एक historic win liberal party के मार्क कार्नी ने दिखाई है. Question number 6, which state is currently facing a major outbreak of African swine fever? वर्तमान में कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन बुखार के बड़े प्रकोप का सामना कर रहा है? African swine fever, अफ्रीकी स्वाइन बुखार. The right answer is Mizoram. Mizoram में more than 3,000 pigs have died because of this fever, and it has led to multiple losses economically and agriculturally. Question number 7, how many gold medals did India win at the 2nd Asian Yogasan Sport Championship? द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? The number of golds that India has won at the 2nd Asian Yogasan Sport Championship, the answer is 83. It is the
maximum. So we stand at the first ranking in the maximum golds. We have 183 gold medals, and this championship is being held in New Delhi. And India के बाद जो second आया है in the ranking of medals is Japan. And third with 27 medals, silver medals, is Nepal. Third is Nepal. Question number 8. What was the amount of penalty imposed on Mahindra and Mahindra Financial Services Limited for regulatory violations by RBI recently? हाल ही में RBI द्वारा विनियामक उल्लंघनों के लिए महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर लगाया गया जुर्माना की राशि कितनी है? In previous videos we have also observed कि RBI जो है रेगुलेटरी प्रोसीजर के चलते फाइन एंड पेनल्टी इम्पोज कर सकता है अगर उसकी कोई भी गाइडलाइंस को कोई बैंक या कोई कंपनी फॉलो ना करे. एंड हियर a penalty of 71.30 lakh has been imposed. Question number 9. Which prestigious award did Shaji N. Karun receive shortly before his passing? Shaji N. Karun को उनके निधन से कुछ समय पहले कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था? The award that he received right before his passing, he passed away at the age of 73 and he received the J.C. Daniel Award. This is basically the highest film honor in the state of Kerala, and he was actually a filmmaker. He was a Malayali filmmaker. Shaji N. Karun, Malayali filmmaker, received the J.C. Daniel Award. Question number 10, which is the last question. In which city was the 2025 WTT contender event where Manush Shah and Diya Chitale won held? 2025 WTT contender event जिसमें मनुष शाह और दिया चिताले ने जीत हासिल की किस शहर में आयोजित किया गया? The WTT contender event organized or held in which city? The answer is Tunis. Tunis is the capital of Tunisia. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs of these questions in English as well as in Hindi along with their explanations. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 67 of our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions in the MCQ format from your current affairs which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का question 1 क्या है? From which date has the RBI mandated all regulated entities to submit applications through the प्रवाह portal? RBI ने किस तारीख से सभी विनियमित संस्थाओं को प्रवाह पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करना अनिवार्य कर दिया है? The प्रवाह portal is basically for the digitalization of licensing scheme by the RBI, and RBI has mandated कि 1st of May 2025 onwards जितनी भी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशंस होंगी वो ऑफलाइन ना होकर प्रवाह पोर्टल के थ्रू ही होंगी. Question number 2. What is India's aim with the launch of Green Hydrogen Certification Scheme by the Ministry of New and Renewable Energy on April 29, 2025? 29 अप्रैल 2025 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के शुभारंभ के साथ भारत का उद्देश्य क्या है? The Green Hydrogen Certification Scheme under Ministry of New and Renewable Energy. India's aim is to become a global green hydrogen hub. हमारा फोकस जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पर क्यों है? Because it is a clean fuel. Clean fuel इसलिए है because as a byproduct it only releases water. कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं होती हैं इससे. Question number 3. According to UN's
World Social Report 2025, what percentage of global population faces economic insecurity? संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का कितना प्रतिशत आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है? ग्लोबल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज यूएन वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट के अनुसार इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी फेस कर रहा है, आर्थिक असुरक्षा? द आंसर इज 60%. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ Amazon's प्रोजेक्ट क्वीपर? Amazon के प्रोजेक्ट क्वीपर का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? Under Project Kuiper, Amazon has launched 27 satellites into space और उसका मेजर एम क्या है? The major aim is to provide global broadband internet, this should be O, to provide global broadband internet especially to underserved areas. अब यहाँ पर अगर हमें पता होता कि एक स्पेस रिलेटेड टर्म है क्वीपर बेल्ट, उसका क्या मतलब होता है? नेपच्यून के बियॉन्ड, नेपच्यून एक प्लैनेट है एट द एंड ऑफ आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो बियॉन्ड नेपच्यून भी बोला जाता है कि बहुत सारे कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स हमें मिलते हैं स्पेस में, तो इस रीजन को क्वीपर बेल्ट कहा जाता है. तो ये एक रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया हो गया इन आवर सोलर सिस्टम बिकॉज ये बियॉन्ड नेपच्यून है जहाँ तक अभी तक हमारी सैटेलाइट्स नहीं पहुंची हैं. सो क्वीपर बेल्ट इज इनटू द रिमोट एरियाज. तो यहाँ पर भी हम नेम ऑफ प्रोजेक्ट क्वीपर से गेस कर सकते थे कि इट इज प्रोबेबली समथिंग रिलेटेड टू अंडरसर्व्ड रिमोट एरियाज. Moving to question 5, which women-centric AI platform was recently launched by Kirtiga Reddy, former Meta India head and co-founder of Verix? Meta India की पूर्व प्रमुख और वेरिक्स की सह संस्थापक कीर्तिगा रेड्डी ने हाल ही में कौन सा महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? An AI platform which is women-centric, which would be mentoring and providing funds to women in the country. The answer here is AI Kiran. Question 6 से पहले एक small disclaimer है. CTET की हमारे जो बैच हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं. They will be offering both paper 1 and paper 2 notes and worksheets. आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप ज्वाइन करते हैं, either in the hard copy format या फिर PDF फॉर्मेट में आपको एवरी डे ऑलमोस्ट मिलेंगी. फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे इस बैच की पेमेंट के अंदर ही. डेली डाउट सेशन होगा विच मीन्स आपकी एग्जामिनेशन डेट तक जब भी आप डाउट अपना क्लियर करने आना चाहें तो आप आ सकते हैं. ऑब्वियसली वी हैव वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स. Our contact details and address details, everything is given here. You can also put your queries in the comments down below. Moving to question 6. Who has been appointed as the new Chief Electoral Officer of Bihar recently? हाल ही में बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? The Chief Electoral Officer. And the right answer here is Vinod Kumar Gunjal. Question 7. Who will be appointed as the 52nd Chief Justice of India by the President द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के 52nd 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? I think we have discussed it in one of the previous videos also. The right answer is B.R. Gavai. and जो अभी हमारे करंट CJI हैं, करंट CJI, उनका नाम आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे. Moving to question 8. How much money was raised through the Green Municipal Bond issued by गाजियाबाद नगर निगम? गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाई गई? एक ट्रिविया इंफॉर्मेशन ये है कि जो गाजियाबाद है, इट इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू इशू अ ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड. पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो गाजियाबाद ने ही इशू किया है. एंड थ्रू दिस बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम हैज ऑलरेडी रेज्ड 150 crore rupees.
Question 9. What was the total CSR spending by listed Indian companies in the financial year 23-24? वित्त वर्ष 2023-24 में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा कुल CSR खर्च कितना था? A factual question here. CSR आपका होता है Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility. और यहाँ पर हमारी जो लिस्टेड इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ या 17,967 करोड़ टू बी प्रिसाइज इतना मनी या इतना अमाउंट CSR स्पेंडिंग की है, CSR में एक्सपेंडिचर किया है. CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा कंपनीज एक्ट है. कंपनीज एक्ट ये कहता है कि हर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अपनी प्रॉफिट में से 2% जरूर किसी सोशल एक्टिविटी या सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में स्पेंड करना होगा विद इन दी कंट्री. वो मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी करना ही है. एंड उसी स्पेंडिंग में दिस मच अमाउंट हैज बिन स्पेंट बाय द लिस्टेड इंडियन कंपनीज इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. Question 10, which is the last question. Recently, India Post has partnered with which mutual fund company to provide doorstep KYC verification services targeting rural and underserved areas? हाल ही में इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए डोर स्टेप KYC सत्यापन सेवाएं प्रदान करने के लिए किस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ साझेदारी की है? म्यूचुअल फंड कंपनी अलॉन्ग विद इंडिया पोस्ट जो डोर स्टेप KYC वेरिफिकेशन सर्विसेज देगी. द आंसर इज SBI म्यूचुअल फंड. So these were 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 68 of our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So today's first question is, the Shillong-Silchar Greenfield Corridor will primarily connect which two Indian states? शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर मुख्य रूप से किन दो भारतीय राज्यों को जोड़ेगा? An easier version of this question is कि शिलोंग और सिलचर बेसिकली किन दो स्टेट्स में स्थित हैं? The right answer is मेघालय and असम. So basically if we look at your northeast region of India, then if this is the Kashmir part and this is the Sikkim part and we have somewhat like this in the northeast part, तो यहाँ तक तो हमारा वेस्ट बंगाल ही आ जाएगा. एंड फ्रॉम हियर भूटान से टच होता हुआ वी हैव असम एंड असम के अंदर ही छोटू सा मेघालय है. हियर वी हैव त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड ये ऊपर सबसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है. बट ये जो इनसाइड पार्ट है उसमें असम है और मेघालय है. सो मेघालय में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शिलोंग विच इज ऑल्सो इट्स कैपिटल ऑफ मेघालय है शिलोंग और असम में है सिलचर. सो शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इन दोनों स्टेट्स को कनेक्ट करेगा. क्वेश्चन नंबर 2, विच स्कीम इज द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 लिंक्ड टू? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 किस योजना से जुड़ा है? These greenhouse gas emissions intensity target rules are linked to which scheme? The right answer here is carbon credit trading scheme. इस स्कीम के चलते हम बेसिकली इंडिया में एक कार्बन मार्केट एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं जिसमें हर इंडस्ट्री या हर कंपनी को एक पर्टिकुलर लिमिट दी जाएगी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए.
एंड उस लिमिट से ऊपर अगर उसने कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की तो उसको कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे। एंड अगर उसने विद इन द लिमिट्स रहकर एमिशंस की तो उसको कार्बन क्रेडिट्स अपने आप ऑटोमेटिकली मिल पाएंगे एंड दीज कार्बन क्रेडिट्स विल बी ट्रेडेबल, यानी कि उसका आदान प्रदान हम कर सकते हैं लाइक ट्रेड इन द कार्बन मार्केट। तो उसी के लिए ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की कितनी इंटेंसिटी रहनी चाहिए उसके टारगेट रूल्स हम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में लागू करना चाह रहे हैं। Question number 3. Which initiative has been granted income tax exemption by the Central Board of Direct Taxes recently? हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस पहल को आयकर छूट प्रदान की है? The RBI and the government, they have the power to do so and उन्होंने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को रिसेंटली जो CBDT ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को रिसेंटली इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दे दी है। क्वेश्चन नंबर 4. हु इज लीडिंग द इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिजाइन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालयीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स, प्राइमरी में आता है आपका रॉ मटेरियल कलेक्शन, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। फिर उस एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को हम सेकेंडरी सेक्टर में डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज। और टर्शरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग, मार्केटिंग एट्सेट्रा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, वो फिलहाल सबसे पीछे चल रहा है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी तो हम शुरू से रहे हैं, और सर्विस इकोनॉमी या जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है इकोनॉमी का, उसने भी काफ़ी ग्रोथ देखी है स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी फ़िलहाल सबसे पीछे है इन टर्म्स ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इंफ्रा कंट्रीब्यूशन। तो इंफ्रा भी अभी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है वो भी इतना वेल डेवलप्ड नहीं है। नेवरदलेस एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की प्लानिंग की है, उसकी डिज़ाइनिंग की है, and it has been led by BVR Subramaniam, and this is under your Make in India program. Make in India में के अंतर्गत हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लाना चाह रहे हैं। Question number 5. Who announced the deployment of 34 supercomputers under the National Supercomputing Mission recently? हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 34 सुपर कंप्यूटरों की तैनाती की घोषणा किसने की? Which ministry has launched this 34 supercomputers or deployed these 34 supercomputers? The right answer is Ministry of Electronics and Infotech. देखो डिफेंस एंड IT का इतना यहाँ पर काम नहीं था. You could be confused in science and tech and MIT. So the right answer is Ministry of Electronics and Infotech. A small disclaimer again, जो हमारा CTET का फ्रेश बैच है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द 5th of May. एंड जस्ट रिमेंबर हम लोग पेपर 1 and 2 दोनों कवर करने वाले हैं विद डेली नोट्स एंड वर्कशीट्स. ऑलमोस्ट डेली आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही वर्कशीट्स भी दी जाएंगी. वर्कशीट्स ऑफलाइन वालों को फिजिकल फॉर्मेट में दी जाएंगी पेपर में, एंड द ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल गेट दी PDFs ऑफ द सेम. और साथ ही फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर, एंड डेली डाउट सेशन आपको मिलेगा. डेली आप कभी भी आकर अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं until your exam is held. So for example आपकी बैच की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है on X date और अभी एग्ज़ाम को बचा है 10 days, 15 days, 20 days. तो एग्ज़ाम डेट तक कभी भी you can come to the institute for any of your doubt sessions. All our well experienced teachers are there to help you. हमारे contact and address details यहाँ given हैं, and you can also put your queries
in the comments down below. Question number 6. When is International Labour Day observed every year? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? I think everybody should know this. A very famous terminology. The right answer is May 1st. It's also known as May Day. May Day भी बोला जाता है इसको. इंटरनेशनली इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ में 1800 या लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड में जब कैपिटलिज्म आ चुका था तो वहाँ वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को सही रखने के लिए उनकी लाइफ पर फोकस करने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे और 1st of May को इंटरनेशनल लेबर डे माना गया था और यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया था 888 का. 888 स्लोगन का मतलब था कि आप 8 आवर्स ऑफ वर्क लीजिए वर्कर से, अच्छी कंडीशंस में उनको रखिए, 8 आवर्स ऑफ रेस्ट दीजिए उनको और बचे 8 आवर्स ऑफ द डे उनको अपनी पर्सनल लाइफ मेंटेन करने दीजिए. तो 888 स्लोगन भी दिया गया था एंड इट्स रिलेटेड टू डिमांड्स फॉर गुड वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स स्पेशली अंडर द कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज. और 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ ये. मे डे भी बोला जाता है इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर्स डे 1st of May. Question number 7. Where was Waves 2025 World Audio Visual and Entertainment Summit launched recently? हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 कहाँ शुरू किया गया? वेव्स 2025 आपने वीडियोस में भी देखा होगा, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज आल्सो प्रेजेंट देयर. द आंसर इज मुंबई. मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट लॉन्च किया गया एंड ये किसकी इनिशिएटिव है? इट इज इंडियाज इनिशिएटिव. क्वेश्चन 8. व्हाट इज द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन अप्रूव्ड फॉर 2025-26 सेशन? 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP क्या है? Everyone should be aware of the concept of FRP. The right answer here is 355 rupees per quintal. So basically आपने MSP ज़रूर सुना होगा जिसकी वजह से often we see farmers protesting as well क्योंकि वो चाहते हैं कि MSP को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिले यानी कि बाय लॉ वो गवर्नमेंट पर कंपलसरी हो कि MSP देना ही पड़ेगा. फिलहाल वो सिर्फ कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस की तरह दिया जाता है बट फार्मर्स ये चाहते हैं कि उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिले यानी कि एक एक्ट लाया जाए जिसमें MSP पर्टिकुलरली मेंशन्ड हो. अब MSP जो होता है वो 22 क्रॉप्स पे मिलता है जैसे कि कॉटन, जूट, कॉपरा, इन सब पे MSP मिलता है. लेकिन जो शुगर केन है उस पे MSP नहीं मिलता, उस पे मिलता है FRP. शुगर केन एक यूनिक क्रॉप है जिसमें हमें FRP देती है गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ MSP. तो डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ MSP वो एक मिनिमम रेट है. इट्स अ मिनिमम रेट एट विच गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर करेगी उन क्रॉप्स को. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉटन उगाया है और उसका MSP X अमाउंट है तो अगर आपका कॉटन मार्केट में नहीं बिकता है अबव X अमाउंट तो आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं वो अमाउंट, वो कॉटन, और गवर्नमेंट आपको X अमाउंट उस पर ज़रूर देगी. गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेगी आपका कॉटन. वेयर एज जो आपका FRP है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ये लगता है या लागू होता है ऑन योर शुगर इंडस्ट्री. तो जितनी भी शुगर इंडस्ट्री की कंपनीज हैं उनको शुगर केन फार्मर्स को ये मिनिमम प्राइस देना ही होगा, कंपलसरी है. सो इट बेसिकली डिफरेंशिएट्स बिटवीन हु इट अप्लाइज ऑन. MSP जो है वो प्रोक्योरमेंट प्राइस है जो कि गवर्नमेंट पर अप्लाई होता है, उस पे गवर्नमेंट फार्मर से ये क्रॉप खरीदेगी. वेयर एज FRP जो है वो एक मिनिमम प्राइस है जो कि शुगर इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है और ये इंडस्ट्री शुगर के इस प्राइस पे खरीदेगी. क्वेश्चन नंबर 9. विच टीम डिड लिवरपूल डिफीट 5-1 टू सिक्योर द प्रीमियर लीग टाइटल? लिवरपूल ने किस टीम को 5-1 से हराकर प्रीमियर लीग का खिताब हासिल किया? One for the football fans. Liverpool has won the Premier League title with 5-1 and defeated
Tottenham Hotspur. Last question of the day. Who recently resigned as MD and CEO of IndusInd Bank due to accounting discrepancies leading to 2000 crore losses, rupees 2000 crore के लॉस? हाल ही में लेखांकन विसंगतियों के कारण 2000 करोड़ रुपए के नुकसान के कारण इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया? Again, a factual question. And the right answer here is Rajesh Gopinathan. These were your 10 questions of the day. If you liked the video, then subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 70 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Who has been appointed as India's interim representative on IMF Executive Board? IMF कार्यकारी बोर्ड में भारत का अंतरिम प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो भी न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड है वो हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है. एंड हियर द राइट आंसर इज परमेश्वरन अय्यर. परमेश्वरन अय्यर को इंटरिम रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है आफ्टर केवी सुब्रमण्यन, जिनका प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हुआ है. द सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन. What role did Dr. KV Subramanian previously hold before being the executive director at the IMF? IMF में कार्यकारी निर्देशक बनने से पहले डॉक्टर केवी सुब्रमण्यन ने क्या भूमिका निभाई थी? As we saw in the previous question, इनकी प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की वजह से हमें इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाना पड़ा, अपॉइंट करना पड़ा. So before being executive director, he was also the chief economic advisor to India. Question number 3. Which unified digital platform has the ECI, Election Commission of India, recently launched to replace over 40 existing electoral applications? भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में 40 से अधिक मौजूदा चुनावी अनुप्रयोगों को बदलने के लिए कौन सा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बेसिकली जो मल्टीपल एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस ECI के हो गए थे, कोई एक रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कोई एक वोटर्स के लिए, उन सब को कंबाइन करके सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है एकीनेट. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द केरला क्रिकेट एसोसिएशन सस्पेंड फॉर्मर क्रिकेटर S. श्रीसंत रिसेंटली? केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर S. श्रीसंत को निलंबित क्यों किया? अ क्वेश्चन फॉर द क्रिकेट फैंस. एंड द राइट आंसर हियर इज फॉर criticizing Sanju Samson's exclusion from the ICC Champions Trophy squad. So basically डिफेमेशन कॉज के चलते S. श्रीसंत को केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने सस्पेंड कर दिया है फॉर a term of 3 years. Moving to question 5. Who was named as Warren Buffett's successor as CEO of Berkshire Hathaway? Berkshire Hathaway के CEO के रूप में वॉरेन बुफे के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? Warren Buffett's successor. Warren Buffett is Hathaway's largest shareholder also, and his successor now is Greg Abel. Question number 6. What was KV Rabia, who was awarded the Padma Shri in 2022 and recently passed away, widely known for? KV Rabia, जिन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और हाल ही में जिनका निधन हो गया, किस लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे? What was she known for? KV Rabia. And the right answer is women's education and social service. So she was a Keralite. केरला में उन्होंने स्टेट लिटरेसी प्रोग्राम में अपना योगदान दिया. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनको बहुत ही क्रिटिकल डिजीजेस थे जैसे कि कैंसर, पोलियो एंड स्पाइन इंजरी. उसके बावजूद उन्होंने
इस सर्विस में अपना योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनॉग्रेटेड? खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? If you have been following news, then Khelo India Youth Games 7th edition was hosted or inaugurated in Patna, which is in Bihar. Moving to question 8, which country has developed the first genome edited rice variety? किस देश ने पहली जीनोम संपादित चावल किस्म विकसित की है? I think we can all guess this question here. एंड द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया का जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसने वर्ल्ड का पहला जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी इजाद किया है जिसका नाम है DRR राइस 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1। ठीक है, ये इसका वैरायटी का टेक्निकल नाम है और इंडिया के ICAR ने इसको इजाद किया है। दिस इज द फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM रिसेंटली? हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला AI संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है? अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर। फर्स्ट AI पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM has been launched by a company called Gold Sikka. I think it is easier to learn. Question number 10, who was re-elected as the Prime Minister of Australia in 2025? 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किसे चुना गया? Re-elected as the Prime Minister of Australia, इंटरनेशनल जो मेजर कंट्रीज के हेड्स हैं, हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, उनका हमें ध्यान रखना है। एंथनी एल्बनीज इज द right answer of this question. These were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ePDFs of these questions in English as well as in Hindi along with their explanations, you can join our Telegram, the link of which is in description. Thank you, bye bye, and keep learning.